My name is Maneeza Naqvi, and this is the 7th episode of the Little Book Company's podcast. And today, I'm in conversation with Dr. Osama Siddique. Osama, welcome. Thank you so much, Maneeza. Lovely to talk to you. Lovely to talk to you too. And before we begin, I want to ask you, should we carry on this conversation in English or should we switch to Urdu? And the reason I ask you this is that your latest novel, Ghuroob-e-Sheher Ka Waqt, is in Urdu. And your first debut novel, Snuffing Out the Moon, is in English, but was translated into Urdu as well. So how do we do this, Osama? Why don't we speak in both? Because I strongly subscribe to the idea that we need to embrace more than one language as our own. And since I write in both, I'd love to speak in both. All right. I think we should do that. तो चलिए यही करते हैं कि हम दोनों ज़बानों में बोलते हैं. तो शुरू यूं करते हैं कि मैं बताऊं कि डॉक्टर ओसामा सिद्दीक is a scholar. He's an academic, legal and policy reform expert, and he's also a novelist. He advises governments and justice sector institutions on rule of law, justice sector reforms, human rights protection, and access to justice. And he was a visiting professor at Harvard Law School, and he serves as a senior faculty member of the Institute of Global Law and Policy at Harvard. Dr. Siddique has taught in Pakistan, US, Qatar, Spain, and Thailand. And he founded the School of Law and Policy at LUMS and served as its first chair and as an associate professor. He has been a partner in the Lahore-based law firm of Minto and Mirza. Here I have to just say I'm smiling because Minto and Mirza would make such a great title for a novel. I know, it would. Minto and Mirza. There's so much music to it. Exactly. And he has engaged there in constitutional, commercial, corporate, and civil practice. Before that, he worked for 4 years as an associate attorney in New York. और अब मैं आपकी किताब की बात करती हूँ जो आपकी लीगल किताब है. His book Pakistan's Experience with Formal Law and Alien Justice was published by the Cambridge University Press in 2013. And his debut novel, Snuffing Out the Moon, was published in 2017. And most recently, of course, his Urdu novel, Chand Ko Gul Kare. No, that was the translation. Chand Ko Gul Kare. That was the translation. Was the translation. And the translation for Snuffing Out the Moon was done by Asim Bakshi. And, that's right. And you said that this was a gorgeous translation. Gee, I collaborated closely with him and I'm very happy with that translation. Wonderful. And his Osama, your most recent novel, of course, as I mentioned earlier, is Ghuroob-e-Sheher Ka Waqt, which, as you and I were discussing earlier, how would you translate it? So, ग़ुरूब का लफ्ज़ जो है वो अमूमन इस्तेमाल होता है सूरज के ग़ुरूब होने के लिए. और मैंने उसका इस्तेमाल किया है शहर के ग़ुरूब होने के लिए, जो कि एक गैर मामूली सा इस्तेमाल है. और मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं महमूद फ़ारूकी, जिन्होंने दास्तान गोई का दोबारा से आगाज़ हिंदुस्तान में किया और पिछले 20 साल से दास्तान गोई का जो हमारा पुराना एक विरसा था उसको वो सामने लेके आए हैं. उन्होंने ये नाम मुझे और बहुत से दोस्तों को जिनको मैंने मुसव्विदा दिखाया उनमें वो भी शामिल थे, उन्होंने ये नाम मुझे प्रपोज़ किया और मुझे बहुत अच्छा लगा. क्योंकि एक तो इस नावल में वक्त का जो तसव्वुर है, टाइम का, उसके ऊपर काफ़ी गुफ्तगू है. और चूंकि ये शहरों के अरूज व ज़वाल के बारे में है तो शहर का लफ्ज़ भी अहम है. और एक ज़िंदा शहर के मरने का चूंकि ये नौहा है तो इसलिए इसमें ग़ुरूब का लफ्ज़ जो है वो भी बहुत मुनासिब है. तो ग़ुरूब आफ्ताब से मैंने ग़ुरूब शहर का, उन्होंने जो मुझे तजवीज़ दी
उससे ही हमने अखज़ किया, जिसका मतलब कुछ इसी तरह का है कि जैसे द सन इज सेटिंग, सो हम्म। द सिटी इज सेटिंग. So you can say that the sun is setting on the city, or you could even say that the city itself is setting. So that's the background to the name. Okay, so for me, I guess it would be more, you're going for the decline of the city, right? जी. Not much जी. the sun is setting, even though that in meaning means that a city is in decline. That's right. Right. That's right. And so, आप कुछ और बताएंगे? Will you want to tell us a little bit about your Urdu novel? जी, ये मेरा ख्याल में तीन मुख्तलिफ सतहों के ऊपर ये नावल है. एक तो इसमें जो प्रोटैगनिस्ट है उसकी जो अंदरूनी ज़िंदगी, बातनी ज़िंदगी है, जैसा कि वक्त गुजरता है तो किसी भी हसास इंसान को ये एहसास होता है कि कायनात की वसअत को सामने देखते हुए वो कितना बेवकत है. सो दिस सेंस ऑफ inadequacy given the sort of the vastness of the universe, that existentialist crisis, is one of the themes. The novel itself actually starts with the protagonist sitting in a graveyard and having a conversation with the dead. दूसरा इसका जो एक इसमें जो गुफ्तगू है वो शहरों के बारे में है. सो इटालो कैल्विनो, जिन्होंने इनविजिबल सिटीज एक किताब बड़ी बाकमाल लिखी थी, जी. उससे मैं बहुत मुतासर हूँ, और बहुत सी किताबों के अलावा. तो ये सवाल भी पैदा होता है कि शहर भी अ, बहुत तरक्की करते हैं और उसके बाद मरना शुरू हो जाते हैं. सो उसके अंदर जाहिर है, फिर मैं चूंकि लाहौर से हूँ तो लाहौर की इसमें बहुत झलक है. लेकिन ये सिर्फ लाहौर के बारे में नहीं है, ये हर उस शहर के बारे में है जो एक ज़माने में उरूज देख के फिर जवाल की तरफ जाता है. और जवाल की बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, उन जिनमें से कुछ का तज़किरा यहाँ पे है. जब लोगों के रिश्तों में दरारें आ जाएं, जब लोगों में रहम का जज्बा ख़त्म हो जाए, जब कुदरत से उनका ताल्लुक जो है वो कमज़ोर हो जाए, जब इल्म जो है वो कोई वक़्त ना रखता हो, और जब इंसाफ की कमी हो किसी माशरे में, तो वो शहर, वो तहजीबें जो हैं वो मर जाती हैं. और सो एक तो बातनी जो मैंने एग्जिस्टेंशलिस्ट बात की, एक शहर के लेवल के ऊपर बात है, और फिर एक लार्जर कॉन्वर्सेशन है अबाउट तहजीब, अबाउट सिविलाइजेशन, अबाउट आइडेंटिटी, कि हम लोग कौन हैं और क्या चीज़ हमें बनाती है. और अगर हम उस चीज़ का इदराक खो दें, इफ़ वी स्टॉप रिकग्नाइजिंग व्हाट इज़ इंटेग्रल टू अस, व्हाट डज दैट मेक अस एज अ पीपल. But much as the name itself is quite melancholic, and it's obviously about decline, obviously there's no point in writing something unless you have a sense of hope within yourself, and you also evoke a sense of hope. So hopefully, within the novel, there are still people who are struggling against all these forces and still trying to, carry on and find meaning in life, and have positivity and contribute. So that's the sort of larger framework of the novel. Of course, within that, there are multiple projects and experimentations. तो आपका जो मेन किरदार है, वो तो खुद लॉयर है इस किताब में, राइट? खालिद जी. इज जी. लॉयर. तो क्या जी. उनकी उनकी नजर से, एक लॉयर की नजर से आप इस पूरे नॉवल में चलते हैं और लीगल सिस्टम को लेके चलते हैं, जिससे आपका इतना गहरा ताल्लुक है? जी, कानून का जो निज़ाम है उसका इसमें काफ़ी एक नुमाया है इस किताब में. लेकिन मेरा नावल लिखने का एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि मुझे कानून के अलावा बहुत सी चीज़ों से दिलचस्पी है. मसलन मुझे फ़नून लतीफ़ा से, मुझे कुदरत से, मुझे आर्किटेक्चर से, तारीख़ से, लिटरेचर से. और ज़िंदगी इतनी दुश्वार और इतनी मुश्किल और इतनी गुंजलक है कि उसको आप एक अदसे से, एक लेंस से नहीं देखते. तो जो खालिद का किरदार है, जिस पे कई लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या ये ऑटोबायोग्राफिकल है, तो जाहिर है हर नावल, हर किताब में आपकी अपनी शख्सियत की कुछ झलक तो होती है. लेकिन मैं मजाकन उनसे ये भी कहता हूँ कि खालिद एक नाकाम वकील है, और मैं इतना नाकाम नहीं हूँ. और कई और चीज़ें भी हैं जो हम में मुश्तरक नहीं हैं. लेकिन खालिद के अंदर जाहिर है, जो खालिद का नुक्ता नज़र है ज़िंदगी का, उसमें कुछ झलक मेरी भी है. लेकिन फिक्शन में हमेशा तीन तरह के किरदार होते हैं. कुछ वो होते हैं जो बिल्कुल हकीकत पे मबनी होते हैं, कुछ वो जो है हकीकत और फिक्शन का इम्तजाज होते हैं, और कुछ वो जो बिल्कुल ख्याली होते हैं. सो इस नावल में भी ऐसे ही है, और खालिद का किरदार जो है वो भी एक तरह का कॉम्पाउंड है ऑफ वेरियस थिंग्स. तो मेरे लिए निज़ाम अदलो इंसाफ किसी माशरे के लिए बहुत अहम है.
और सारी ज़िंदगी कानून की किताबें लिख के, कानून पढ़ा के, वकालत करके, रिफॉर्म्स का काम करके आपके अंदर जो इज़्तिराब होता है कि चीज़ें तब्दील क्यों नहीं हो रही, तो बिल आखिर मेरे ख्याल में उस फ्रस्ट्रेशन का एक जरिया इजहार जो है वो तंज भी है. हम्म And as you know, satire has always played a very huge role in literature, and it's a very sort of important sort of weapon that we wield to fight against an unjust system. हम्म So that's definitely there, but there's a lot more. There is nostalgia. There is a linkage with past sort of epics and traditions. There's an entire exploration of traditional architectural styles. There's a more philosophical engagement with time. So there are multiple other themes, and those are themes which actually Khalid is also interested in. Maybe that's why he's a failed lawyer, because he actually looks at life in so many different ways and is not narrow and completely a careerist. हम्म So in that way, it does reflect what I mean, I'm taking a big guess here. क्या आप तो एज अ लॉयर तो नहीं, आप हर दिन कोर्ट में जाके केसेस तो नहीं लड़ते, आप तो वन स्टेप या टू स्टेप्स बैक है ना, उससे आप ज्यादा एक एकेडमिक नजर से लॉ को देखते हैं, नहीं? या जी ऐसे ही है, लेकिन मैंने कानून से मुंसलिक जो कुछ हो सकता था सब कर लिया. जी। वकालत भी की, यहाँ भी, बैरून मुल्क भी, पढ़ाया भी. एक लॉ स्कूल का जो था तश्कील में भी कुछ रोल प्ले किया, कोर्सेज भी बनाए, पॉलिसियाँ भी बनाई, कानून भी लिखता हूँ, रिफॉर्म का काम भी किया है, एडवोकेसी भी की है, और रिसर्च भी की है. तो उससे मुझे ये एहसास हुआ है कि एक तो कानून एक कमाल की चीज़ है, अगर उसको बहुत तंग नज़रों से ना देखा जाए तो इट्स अ वंडरफुल टूल, इट्स वेरी मल्टीफेरियस. और ये मैं स्टूडेंट्स को भी बताता हूँ कि इसके, और दूसरी बात यह कि कानून को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि बाकी बहुत से डिसिप्लिन्स को समझा जाए. तीसरी बात यह है कि मेरा अपना इर्तिका ऐसे हुआ है कि मेरी दिलचस्पी अब सिर्फ कानून में एज अ साइंस, एज अ मेथोडोलॉजी, एज अ टूल किट नहीं है. मेरी सारी दिलचस्पी इस चीज़ में है कि कानून इंसानी माशरे पे किस तरह से असरअंदाज होता है, कैसे इसका इस्तेमाल करके कुछ लोग ताकतवर हैं, कुछ कमज़ोर हैं, कुछ के साथ जुल्म हो रहा है तो कोई फ़ायदा उठा रहे हैं. Which is why over the years I actually evolved into becoming a sociologist of the law. And a lot of work which I do is as a historian of law, as a law and development person. I work with economists. So I think it's very important to embrace that multifarious nature of law. लेकिन एक और लेवल पे कानून का एक बुनियादी मकसद लोगों के मसाइल का, लोगों के आपस के अंदर जो लड़ाइयाँ हैं उसका तस्फिया करना है. वो जब मैं देखता हूँ, और इतने सालों से देख रहा हूँ मुख्तलिफ जगहों से, तो मुख्तलिफ वैंटेज पॉइंट से, तो मुझे ये एहसास होता है कि हमारे जैसे पोस्ट कलोनियल माशरे में बहुत से इजाफी मसाइल हैं जो आम आदमी के रस्ते में रुकावट डालते हैं, जिसकी वजह से इंसाफ का हसूल नहीं होता. And since in my academic work, I've worked on colonialism and post-colonialism, and I've looked at the impact of colonial law on our society and the kind of alienation it causes. So that background in looking at this academically, of course, also helps me in terms of envisioning how things happen now. हम्म The difference is that now my focus is very much on human stories, on individuals and what they undergo, especially the underdog, हम्म and how special interests and powerful groups actually use or abuse the law as a coercive tool. And we see that happening all the time. हम्म At the same time, I think it's also very important to look at how law empowers certain communities to rule and dominate, and how, this entire hegemony on the language of the law makes you a powerful despot, may it be in the realm of international politics or may it be in the realm of more domestic sort of jurisdictions. तो So those themes are very much there. हम्म तो इधर मेरे दिमाग में इतने ज्यादा सवाल आ रहे हैं और आप इतनी तेजी से गुफ्तगू कर रहे हैं, बिकॉज आपका दिमाग इस तरह से काम करता है. लेकिन मेरा इस वक्त एक जो सवाल जो उठ रहा है दिमाग में, क्या ये मुमकिन है कि बिकॉज हमारा जो कानून है पाकिस्तान में और दूसरे मुल्कों में भी जहाँ जहाँ अंग्रेजों की हुकूमत रही है, कॉलोनियलिज्म जी. का हाथ रहा है, कि जी. यहाँ लॉ जो नाफिज हुआ जो आज तक उसी का इस्तेमाल है, कि वो इंसाफ पे उसका
फोकस नहीं था, बल्कि ज्यादा उसका फोकस जो था वो पुलिसिंग पे था। हम्म 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 उससे कोई हम्म। है वजन जो मैं कह रही हूँ कि नहीं यहाँ नहीं, बिल्कुल सही कह रही। पर ज्यादा? असल में जी जी, बताइए। हमारे यहाँ एक तासुर है जो बड़ा गलत तासुर है कि जो कॉलोनियल लीगल एक्सपीरियंस था वो एक सिर्फ मॉडर्नाइजिंग एक्सपीरियंस था, जो हमें किसी मिडीवल ईथॉस से एक मॉडर्न ईथॉस की तरफ ले आया। और ये भी कि ये तमाम जो प्रोसेस था ये कोई बड़ा होमोजेनस सा प्रोसेस था। तो मेरी तहकीक और बहुत से लोगों की तहकीक ये कहती है कि जब अंग्रेज यहाँ 18वीं सदी में आए और बंगाल की एनेक्सेशन हुई, तो उसके बाद पहले पहल तो उनके अंदर दे वर हाईली इनसिक्योर बिकॉज दे थॉट दैट दे हैड एनेक्स्ड बंगाल, but they realized that these were a very sophisticated people that they had come to rule over through various kinds of coincidences and opportunism and all that. So, for the first many years, they actually tried to justify themselves by saying that, look, India is a land of ancient constitutions. And we have just come to revive that and continue in the tradition. They did not have the confidence to say that we are lawmakers or we have come up with a law. They took Islamic sort of law, जो आपका था criminal law. They took the local sort of laws. They even tried to turn the Dharma Shastras, which were the wisdom books of the Hindus, into legal textbooks, even though these were more like books of theology and philosophy. And then they imported certain concepts. So it was a very reluctant, a very hesitant sort of experimentation as a lawgiver. The second thing which was happening was that there was a huge amount of discontentment they had with their own laws. Remember, this is the time of Dickens' London, and these laws were incredibly draconian. So there was a lot of guinea pigging which took place. They were actually both trying to come up with progressive laws because they wanted to be better masters and more efficient, but also because it was all this ire and angst and sort of frustration against what they had left behind. So, you have a lot of contradictions, a lot of paradoxes, depending on which phase of the colonial experience you look at and which part of India you look at. It's only after 1857 that they had the confidence and they sort of struck back and said कि अब हम अपना कानून लाएंगे चूंकि हम हुक्मरान हैं, and they came up with codifications. And it was the era of codifications all over the world. So they came up with the Penal Code, the Contract Act, the Criminal Procedure Code. So it's a very long and checkered history. And there was a lot of experimentation, a lot of mistakes, a lot of contradictions. What gets displaced because of all this is a local way of resolving disputes. First of all, they grudgingly acknowledged later that the Islamic criminal law was actually quite sophisticated. Not only sophisticated, they said that हमने इसको कहा था कि ये बड़ा जालिम है, ये तो बड़ा lenient है, because Islamic criminal law के अंदर actually बहुत सी mitigating circumstances हैं, चीजें हैं। जो अंग्रेज का criminal law था वो तो काफी brutal और bloody था। तो अच्छा, at the same time, it's not as simple as that, because in some ways, contract enforcement and the centrality of land and land transactions, कई चीजें ऐसी उन्होंने की जिसके वजह से मॉडर्नाइजेशन भी हुई। मसला सारा ये है कि जो लोगों का डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म होता है वो उनकी सकाफत का इनादार होता है। जहां से ये लोग आए थे वहां पे एक लीगल डिस्प्यूट में विनर्स एंड लूजर्स होते हैं। जिस खित्ते में वो आए थे वहां पे इतना एडवर्सेरियल सिस्टम नहीं था डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का, अक्सर कॉम्प्रोमाइज होता था या कोशिश होती थी कि तमाम लोग जो हैं उनका कुछ ना कुछ फायदा हो, उनमें दुश्मनी पैदा ना हो। तो ये तमाम चीज जो थी ये डिस्प्लेस हुई, और हमने 47 के बाद बिल्कुल इस चीज को क्वेश्चन नहीं किया कि ये जो निज़ाम आया है क्या इसका आम लोगों से कोई ताल्लुक भी है, वो इसका प्रोसीजर समझते हैं, इसकी जुबान उनको समझ नहीं आती, और उनका जो बेसिक ईथॉस था उसके ये मुतरादिफ है। और फिर हम उसके बाद 47 के बाद ज़ाहिर है एक कोठरी बन गई जजेस की, लॉयर्स की, और वो कस्टोडियन बन गए इसके, और उनका इसमें इंटरेस्ट भी था, और ये चलता रहा उसके बाद। लेकिन आज तक वो जो एक फासला है आम आदमी में और इस कानून में वो बरकरार है। हम्म तो अब इसके साथ अब हम किस तरह से बढ़ सकते हैं? जब तक यहाँ कोई डीप रिफॉर्म ना हो तो किस तरह से मामला आगे बढ़ सकता है? लेकिन जी कोई 20-22 साल से तो इस रिफॉर्म के प्रोसेस से मैं भी मुंसलिक हूँ, और उसमें सबसे बड़ा मसला पॉलिटिकल विल का है। अब हमें अच्छी तरह से पता है कि हमारे कानून में क्या मसाइल हैं, और हम कोई 150 साल पहले नहीं जाना चाह रहे। जो 21वीं सदी के अंदर कानून हैं
उन्हीं को सामने रख के, और इंग्लिस्तान में खुद 80 की दिहाई में उन्होंने अपने कवानीन को बेतहाशा रिफॉर्म किया, राइट। सो इट्स नॉट एज इफ के देयर होल्डिंग ऑन, बट हम 19वीं सदी के जो वस्त के कवानीन हैं, वो अभी तक हमारे, हम उनके साथ इस तरह से अकीदत के साथ बैठे हुए हैं कि जैसे कोई कमाल की बात है। तो वो एक पोस्ट कॉलोनियल कॉन्फिडेंस जो था, वो ना हिंदुस्तान में आया ना पाकिस्तान में आया। हम्म, अब जरूरत इस चीज की है कि इन कवानीन को असर नौ देखा जाए, जो हम बहुत सालों से देखने की कोशिश भी कर रहे हैं। उनमें आम आदमी के एक्सेस को आसान किया जाए, हम्म, इनको लोकल जुबानों में तर्जुमा किया जाए, इन कवानीन का इनको आसान बनाया जाए। और बहुत से मसाइल ऐसे हैं लोगों के जो अदालतों के बाहर हल होने चाहिए या पुलिस के थाने के बाहर हल होने चाहिए, चाहे वो माशरे के लेवल पे हों, रिकन्सिलिएशन आर्बिट्रेशन के थ्रू हों, ताकि उनको अदालतों में ना जाना पड़े, और अगर जाना पड़ जाए तो फिर फ्री लीगल एड के थ्रू उनकी मदद की जाए। नहीं तो वहां पे तो इट्स नॉट एट ऑल अ लेवल प्लेइंग फील्ड। तो सो इसमें आई थिंक एक्सेस, हाँ, एक्सेस टू जस्टिस और इंटेलिजिबिलिटी ऑफ लॉ, दोनों के लिए बहुत सी ऑब्वियस चीजें जो अभी तक हमने नहीं की। इसमें कोई काम हो रहा है, कोई भी? आप कह रहे हैं नहीं की तो नहीं, काम तो बेतहाशा हुआ है, और खुद भी अदालतों ने और हुकूमत ने प्रोसेसेस इसके किए हैं, और हमने लाखों करोड़ों डॉलर की एड ली है बाहर के इदारों से रिफॉर्म्स के लिए। हिंदुस्तान में फॉर इंस्टेंस जो भी काम हुआ है वहाँ पे भी अभी बहुत गुंजाइश है। हम्म, हालात कोई अच्छे नहीं हैं उनके निज़ाम अदल इंसाफ के। लेकिन हमारे यहाँ एक ख़ास बात यह है कि हम तो बहुत सालों से बहुत से बैंकों से, आलमी बैंकों से और इदारों से पैसे लेते हैं, हम्म, और कभी लोन होता है तो कभी ग्रांट होती है, और वो सब लॉ रिफॉर्म के लिए। और ये लाखों करोड़ों डॉलर जो हमने खर्च किए हैं, उसके एवज हमारे पास कुछ दिखाने को खास नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये रिफॉर्म्स, या तो डिज़ाइन इनका फ्लॉड था, जो बाहर से इदारे इनको लेके आए, उन्होंने इसके ऊपर कोई खास वक्त नहीं लगाया, उनकी अपनी नाअहली है, या ये मसला है कि यहाँ पे डेमोक्रेटिक डेफिसिट था, ये ब्यूरोक्रेट्स के और जजेस के थ्रू हो रहा था, पॉलिटिकल ओनरशिप कोई नहीं थी। और या ये है कि इनकी मियाद बड़ी प्रोजेक्ट्स की कम थी। जैसे आपको दीज आर डिफिकल्ट रिफॉर्म्स, जस्टिस इज ऑलवेज डिफिकल्ट, तो आपको ज़्यादा वक्त लगाने की जरूरत थी, उतनी देर में प्रोजेक्ट का टाइम खत्म हो जाता है। बहुत से मसाइल हैं। मैं तो इसको रिफॉर्म क्लब कहता हूँ, जिसका मैं भी हिस्सा हूँ, जी। और ऑल्दो मैंने कोशिश की, लेकिन बड़े कम लोग हैं जिनको पता है कि अंदर खाने हो क्या रहा है। जी, लेकिन और कितने सालों से तो मार्शल लॉ भी तो रहा ना। तो फिर जब जहाँ मार्शल लॉ हो ये वहाँ। मसला था। हम्म, हाँ, तो मार्शल लॉ जब होता है तो उसमें ये एग्जेक्टिव शॉर्टकट्स लेते हैं। ये बिल्कुल। सिर्फ जाके टॉप के चार लोगों से जो अकाउंटेबल नहीं है उनसे बात करते हैं। तो अमूमन जो रिफॉर्म होती है वो सस्टेनेबल नहीं होती, वो लोकली रेलेवेंट नहीं होती। उसमें जिसको हम कहते हैं ट्रांसप्लांटेशन होती है, कि दुनिया के किसी खत्ते से जिसका सियाको सबाक और कॉन्टेक्स्ट हमसे बिल्कुल मुख्तलिफ है, वो यहाँ आके उसकी पैबंदकारी करते हैं, वो नहीं चलती। तो उस पे तो लिखा भी गया है। मेरी एक किताब जो है, जो मेरे पीएचडी डिसर्टेशन पे बेस्ड है, उसका एक तिहाई हिस्सा जो है इस रिफॉर्म के फेलियर के ऊपर है, कि इसकी इसकी सियासत, इसकी कंसेप्चुलाइजेशन, इसकी इम्प्लीमेंटेशन में क्या मसाइल हैं। और कोई बहुत ख़ास इम्प्रूवमेंट आज तक नहीं आई। नहीं तो जितना इस पे वक्त सर्फ हुआ है और जितने पैसे लगे हैं, अब तक तो चीज़ें बहुत बेहतर हो जानी चाहिए। बिल्कुल, तो वापस आइए अपने नॉवेल्स की तरफ। जी। जी। तो खालिद मायूस हैं इस सब से? खालिद मायूस है, लेकिन खालिद को एहसास है कि ज़िंदगी एक अहम मौका है और बढ़िया एक हसीन चीज़ है। और खालिद की ज़िंदगी में जैसे जैसे चीज़ें चलती चली जाती हैं, वो निज़ाम से तो बहुत मुतनफ़िर है, बहुत नाराज़ है। लेकिन उसको फिर कुछ आम लोग और इवन कुछ बच्चे ये सिखाते हैं कि ज़िंदगी जो है वो एक जदोजहद का नाम है, और ये कि लोग उससे बहुत मुश्किल हालात में और उससे बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ के बावजूद उस जदोजहद का हिस्सा हैं, और वो माशरे में अच्छाई फैला रहे हैं, और उससे वो इंस्पिरेशन लेता है। और उन लोगों को देख के उसे एहसास होता है कि सिर्फ नाराज़ होना दुनिया से और सिनिसिज्म जो है वो आंसर नहीं है किसी चीज़ का। अब जाहिर है वो एक आइडियलिस्ट भी है, उसका नॉस्टैल्जिया भी एक है चीज़ों के बारे में। और अमूमन ऐसे लोग जो कि बिल्कुल ज़िंदगी की चक्की के साथ साथ उसी की रफ्तार से नहीं चल रहे होते, वही ड्रीमर्स होते हैं, वही आइडियलिस्ट होते हैं जो नए ख्वाब देखते हैं। हम्म, तो एक लिहाज से तो नॉन कन्फॉर्मिस्ट होना अच्छी बात है, जो कि वो है। हम्म, लेकिन उसको ये भी एहसास है कि वो एक मिसफिट है। हम्म, लेकिन उसको अब वो एक तरह का बैलेंस स्ट्राइक करने की कोशिश कर रहा है कि ख्वाब भी देखे, हम्म, लेकिन कुछ ना कुछ जिंदगी में, दूसरों की जिंदगी में कुछ बेहतरी लाने के लिए हम्म, मौसर तरीके से काम भी। हम्म। तो फिर ये एक शहर का जवाल है या उसका ये गुरूब हो रहा है या तुलूब हो रहा है? बिकॉज
जैसे इटालो कैल्विनो का आपने इनविजिबल सिटीज का जिक्र किया, तो जी जी। मुझे उस किताब से बहुत ही मुझे मेरी भी वो एक बहुत ही पसंदीदा किताब है, और मैं वापस उसको पढ़ती रहती हूँ, जाके पढ़ती हूँ कि मुझे लग रहा है कि कैल्विनो हमें कह रहा है कि अपनी नज़र को ज़रा फोकस करके ज़रा शहर को बहुत एक, या शहरों को बहुत ही एक जरा तंग करो, अपनी नजर को छोटा करो कि तुम्हें छोटी छोटी खूबसूरतियां नजर आए, तुम्हें पॉइंट्स ऑफ लाइट नजर आए छोटी छोटी। जी एक जी। वो कि तुम्हें एक उसका उसकी जो रेजिस्टेंस है एक शहर में, जो लग रहा है कि वो गुरूब है हो रहा है या खत्म हो रहा हम्म है एक जगह, या हम्म गाड़ी बिगाड़ी हुई है या उजड़ी हुई है, उसमें फिर तुम अगर करीब से देखो तो बहुत सी खूबसूरतियां हैं उसमें, और हम्म। बहुत रोशनियां हैं। तो क्या आप हम्म। की तरफ ये भी उस अ, ये है आपका मतलब कि देखें, उसकी एक तशरीह तो वो है जो आपने बयान की, जो बिल्कुल सही है कि जब आप एक ही शहर को देखते हैं तो उसके बहुत से मुख्तलिफ पहलू, बहुत से उसकी जमालियात, बहुत से उसके रुख हैं जो आप पे नुमाया नहीं होते जब तक आप देखना नहीं शुरू करते। एक और उसकी तशरीह ये भी है कि जब कुबलाई खान इस कहानी में इतालो कैल्विनो की, मार्को पोलो की ये जिम्मेदारी लगाता है कि वो उसकी सल्तनत में जाके देखे कि कितने शहर हैं और कैसे शहर हैं और वहाँ क्या हो रहा है, तो वो हर वो शहर जो बयान करता है वो वेनिस निकलता है। सो इसका मतलब ये है कि वेनिस जो है उसके दिल में ऐसे रचा बसा हुआ है कि उसे हर चीज़ में अपना शहर नज़र आता है। ये उसकी उसकी अपनी शहर से मोहब्बत है। एक तशरीह उसकी ये भी हो सकती है कि एक ही शहर कई तरीके से तरक्की करता है, कई, और जो देखने वाला है उसकी निगाह में वो शहर एक मुख्तलिफ शहर है। जैसे एक जगह वो बयान करता है कि अगर कोई किसी शहर को दूर से देखे और वहाँ आ रहा हो, चल के आ रहा हो, तो उससे जिससे हमें, और उसका उसका पस मंज़र, उसका उसका जो नुक्ता नज़र है वो शहर में रहने वाले से बहुत मुख्तलिफ है। मैं ये दिखाना चाहता था कि ये जो शहर जिसमें मैं रह रहा हूँ या इस तरह का कोई भी शहर, उस पे बहुत से ज़माने बीतते हैं और बहुत से लोग वहाँ पे हैं। तो तारीख से सीखना और अपने आप को कंटेक्चुअलाइज करना और हिस्टोरिसाइज व्यू रखना इसलिए अहम है कि आपको उससे उम्मीद भी मिलती है, आपको उसको एक नुक्ता नज़र भी मिलता है कि और भी लोग यहाँ पे बसे थे। तो एक तो उससे ह्यूमिलिटी आती है, दूसरा आप ये सीखते हैं कि वो और लोग क्यों मर खप गए और मैं क्या ऐसा कर सकता हूँ कि जिससे ये शहर जो है वो मज़ीद इसकी अफजाइश हो। और फिर ये भी ख्याल आता है फलसफियाना लेवल पे कि अल्टीमेटली तो तमाम शहर उजड़ जाते हैं ना, सो फिर क्या गम करना। कोशिश करो कि कुछ अच्छा करो, कोशिश करो कि खुश रहो। दो तो मेरे बात ख्याल में ये तमाम तस्वुरात जो है ना ये उसके जहन में है। दो बातें कि अल्टीमेटली क्या शहर उजड़ते हैं, या हर दौर में जो सोचने वाले लोग हैं, हसास लोग हैं, लिखने वाले हैं, शायर हैं, वो समझते हैं कि उनका शहर उजड़ रहा है। एक ये बात। दूसरी बात हम्म जरा जहन में रखिएगा। और हम्म दूसरी ये बात कि मैं भी थोड़ी सी तशरीह कर दूं कि मेरा क्या ख्याल था इटालो कल्विनो हम्म की किताब पे। वो ये था कि हम्म कुबलाई खान ने मार्को पोलो से पूछा कि तुम दिखाओ, बताओ मुझे कि तुमने क्या क्या देखा, मैं तो पूरी दुनिया पे हम्म गई हूँ। तो उस हम्म। को पोलो ने बताया कि जी जी बिल्कुल, मैंने आपके पूरी जो आपका है इधर से उधर तक तुरंत है, बिल्कुल। एम्पायर है उसमें गया मैं, और उसमें मैंने ये देखा और मैंने वो देखा। तो कुबलाई खान जो है वो हैरत अंगेज है बिल्कुल। हैरत ज़दा हो गया, हाँ। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। और इस तरह से मार्को पोलो एक तरीके से कैल्विनो दिखा रहा है कि वो रेजिस्टेंस है, कि देखो तुम समझते हो कि तुम हो हुक्मरान यहाँ, तुम्हारा हम्म चलता है कंट्रोल, लेकिन देखो हम्म। ये तो ऐसी ऐसी जगहें हैं जो तुम्हारी नजर में भी नहीं है, जो फ्लरिश ये कर, भी है। ठीक है ना। बिल्कुल तुम समझते हो कि बिल्कुल तुम ऐसे। जगह पे तुम हावी हो, तुम्हारी नजर है, लेकिन तुम्हारी तो नजर बहुत तंग है, मैं तुम्हें दिखा। बिल्कुल ठीक। हाँ। नहीं, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है और यही उस किताब की खूबसूरती है कि उसकी बहुत सी तशरीहात हो सकती हैं और ये बिल्कुल एक बहुत उम्दा तशरीह है कि उसका ये ख्याल है कि उसकी दुनिया भर पे सल्तनत कायम है और वो उसको एक शहर के इतने पहलू दिखाता है जो उसकी नज़र से पोशीदा है।
यानी कि और बहुत सी दुनियाएं हैं जो आबाद हैं, जो कुबलाई खान की दस्तरस में भी नहीं है। और जहां तक पहली बात का ताल्लुक है, ये बात तो सही है कि किसी हसास शख्स को हमेशा ये लगेगा कि एक शहर जो है वो अपने पोटेंशियल तक नहीं पहुंचा, या उसके अंदर अगर उसको ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं जो जवाल पजीर हैं, हो सकता है कि बाकी लोगों को नज़र ना आए, उनके ख्याल में सब ठीक चल रहा है। लेकिन ये भी हकीकत है कि तमाम शहर कभी ना कभी तो मर ही जाते हैं। और यही एक थीम मेरे पिछले नॉवल स्नफिंग आउट द मून में भी है, जो चांद को गुल करें तो हम जाने, जिसका तर्जुमा है, जिसमें मैं यहाँ तो एक शहर को देख रहा हूँ, 40-50 साल के अरसे को देख रहा हूँ। वहाँ मैं एक खित्ते को देख रहा हूँ और 4,000 साल के अरसे को देख रहा हूँ। और वहाँ भी मेरा सवाल ये है, और मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि मेरे पास उसका जवाब है, कि तहजीबें क्यों मर जाती हैं, क्या होता है, और क्या वो अवामिल और क्या मुहर्रिकात हैं जिसकी वजह से कोई तहजीब जो है वो मर जाती है। यही सवाल वहाँ पे प्रकाश जो है वो मोहनजोदाड़ो के एक पुराने आर्किटेक्ट से पूछता है कि भाई क्या वजह है, तुमने तो इसका अरूज देखा था। तो उसमें कुछ हैं स्पेकुलेशंस, कुछ कंजेक्चर्स हैं कि क्यों ऐसे होता है। लेकिन ये सवाल तो हम हमेशा से पूछते आए हैं कि इंसान का ये जो इर्तका है इंसानी तहजीब का, क्या इसी तरह से है अरूज और जवाल का। चाहे हम वहाँ से जहाँ से सोशियोलॉजी शुरू हुई, मुकदमा इब्ने खल्दून से, वहाँ से देखना शुरू करें, तो हम्म। वहाँ भी हमें यही नजर आता है कि कभी कोई हावी होता है तो कभी कोई हावी होता है। जी, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमारा आपका उस खित्ते से ताल्लुक है जहाँ शहर 5,000 साल पहले, 6,000 साल पहले अपनी उरूज पे आए, और फिर उनका जवाल हुआ, और हमें पूरी तरह से ये नहीं पता कि जवाल क्यों हुआ। लेकिन कौन जी। से शहर हैं आप जो अब आप जो सोच सकते हैं, जो अ, अ, रोम तो अभी भी है, वेनिस हम्म। अभी भी है, दिल्ली अभी तक है, लाहौर है, और लंदन है, पेरिस है। ये इनके कितने जवाल हुए, कितने अरूज हुए। बिल्कुल। सो गरूबे शहर का वक्त का ये मतलब नहीं कि तुलुए शहर नहीं हो सकता। उसी उसमें जिस तरह से हाँ, जब मार्को पोलो अपने कुबलाई खान को बता रहा है कि तुम बिल्कुल। सो इसमें जो सवाल, खालिद और उसके दोस्तों की जदोजहद है वो तो तुलू के लिए ही है। कि तुम तो समझते हो कि तुमने बहुत सारे शहरों को गुरूब की किया, लेकिन हम्म। मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि वहां तो इतनी रोशनियां हैं जो चमक रही हैं, जिस तक तुम पहुंच भी नहीं सकते कभी भी। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। सो वही है कि हर माशरे में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी नज़र हमेशा उफक पे होती है, और वो ये ख्वाब देखते हैं कि भी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। अगर ये हम ना करें तो हम सुबह उठ ना पाएं और सारी दिन की जो जदोजहद है वो ना कर पाएं। सो इसमें बहरहाल ऐसे किरदार हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी और अपने माशरे की ज़िंदगी के लिए एक बेहतर मुस्तकबिल के लिए जदोजहद जारी रखी है। हालांकि इर्द गिर्द जब वो देखते हैं तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि उनके लिए मुश्किलें पैदा करती हैं और जो कि बहुत ज़्यादा उम्मीद अफजा नहीं हैं। लेकिन पहली बात तो ये है कि अगर एक चीज़ वाकई ख़राबी की तरफ जा रही है तो उसका बताना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम ख्वाब खरगोश देखते रहें कि नहीं सब कुछ ठीक है, तो वो तो नहीं है। तो ख्वाबे इसके अंदर बहुत, सॉरी, ख्वाबे क्या देखते रहे। ख्वाब खरगोश, यानी कि हम डे ड्रीम करते रहें, तो और एक तरह की रेवरीज के अंदर हम रहें, तो वो तो नहीं मुनासिब चीज़, चूँकि हकीकत तो पता होनी चाहिए ना, वी कांट बी एन ऑस्ट्रिच। लेकिन एट द सेम टाइम cynicism इज also नॉट द आंसर। सो द कैरेक्टर्स here are disgruntled and aggrieved, but also and sensitive, but also trying to see what they can do and what the future holds for them. तो इस जगह हम जरा पॉज करते हैं उसामा, और अभी फौरन वापस आते हैं गुफ्तगू को जारी Sure. रखने के लिए। Sure. तो उसामा, आपकी जो किताब है स्नफिंग आउट द मून, वो हिंदुस्तान से, इंडिया से पेंगुइन रैंडम हाउस ने छापी, और उसका उर्दू ट्रांसलेशन यहाँ झेलम बुक कॉर्नर ने छापा। जी। तो आप दोनों का जरा एक्सपीरियंस बताइए।
जी, पेंगुइन से मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। वहाँ पे रंजना सेन गुप्ता उस ज़माने में पब्लिशर थी, और मेरा उनसे रब्ता हुआ डॉक्टर आयशा जलाल के थ्रू। और वो पाकिस्तान में वक्त गुजार चुकी थी, उनके मियाँ यहाँ पे सफ़ीर थे हिंदुस्तान के। और सो बहुत सी थीम्स जो कि स्नफिंग आउट द मून में हैं वो उनके दिल के बहुत करीब थी, और मुझे बहुत मज़ा आया उनके साथ काम करके। हम्म। और उनकी जो बाकी टीम थी वो बहुत प्रोफेशनल थी और बड़ी सेंसिटिव थी। और इस किताब का टाइटल चुनने में और इसकी जो टोन एंड टेनर में, एक अच्छा पब्लिशर, अच्छा एडिटर और एक अच्छा जो उसका डिज़ाइनर है, उसका जो कितना बड़ा रोल होता है। तो वो इसलिए मेरा बड़ा खुशगवार वो एक एक्सपीरियंस था। उसके बाद जब वो किताब यहाँ पे आना बंद हुई, चूँकि हिंदुस्तान से किताबों की इंपोर्ट पे हमने पाबंदी लगा दी, वो फिर मैंने यहाँ से छपवाई। लेकिन उससे पहले उसका जो तर्जुमा था, उसका मुझे ख्याल आया कि मुझे लिखना तो अपने लोगों के लिए है, और कई लोगों की दस्तरस नहीं है इस किताब तक, चूँकि ये अंग्रेज़ी में है। और वैसे भी इसका जो मिजाज है और जो इसका जो इसका इसके जो थीम्स हैं वो तो यहाँ की हैं। सो लेकिन मेरे में ये उस वक्त एतमाद नहीं था कि मैं इसका तर्जुमा खुद कर पाऊँ, और मुझे ये भी ख्याल आया कि बजाय ये कि मैं इसका तर्जुमा करूँ, मैं कुछ और जो नया लिखना चाह रहा हूँ वो लिखूँ। हम्म। तो मेरी आसिफ बख्शी साहब से मुलाकात करवाई एक दोस्त ने। और वो एक बाकमाल शख्स हैं, चूँकि वो बहुत सी चीज़ें करते हैं और बहुत उनका वसी मुतालिया है, और बहुत अच्छे शायर हैं, और फ़लसफ़ा भी उनका बहुत शौकीन है उसके। तो फिर वो कोविड का ज़माना था, तो वो इस तरह से हुआ कि हम इसी तरह जूम पे बात करते थे। और वो एक हर हफ्ते कोई ना कोई चैप्टर जो था उसका तर्जुमा करके, चूँकि वैसे भी वो मसरूफ़ आदमी है, मुझे भेज देते थे। और फिर मैं उसको देखता था, और फिर मैं उसके ऊपर अपनी कुछ तजावीज़ देता था। वो जाहिर है कि एक मुतरजम के तौर पे ये देखते थे कि कितना मुस्तनद है तर्जुमा। और हमारी बहुत बहसें हुई इसके ऊपर, इल्मी बहसें, बड़ी खुशगवार बहसें, कि अगर वादी सिंध की तहजीब हम दिखा रहे हैं तो ज़ुबान किस तरह की होगी, और अगर टेक्सला दिखा रहे हैं तो कैसी होगी, किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए। मेरा ये था कि चूंकि मैंने लिखा था नावल, और कई जगह मुझे लगता था कि मुस्तनद होना भी ज़रूरी है, लेकिन दूसरी ज़ुबान में तर्जुमा करते हुए उसका जो फ़्लो है, उसकी जो मौसीकी है ज़ुबान की, उसका जो रोमान है वो भी बरकरार रहे। तो बहुत हमारा अच्छा ये रहा रिमोटली ताल्लुक़। कई जगह मैंने उनकी बात मानी, कई जगह उन्होंने मेरी मानी। तर्जुमा बहरहाल उनका है और लोगों ने बहुत पसंद किया। और फिर कोविड का जब जोर थोड़ा टूटा और हमारी मुलाकात शुरू हुई, तो फिर हमारी एक बड़ी अच्छी दोस्ती भी हो गई, चूँकि वो बहुत उनका मुतालिया वसी है। तो मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि मुझे एक इतना अच्छा मुतरजम मिला। जी। और उनके लिए भी ज़रा थोड़ा मुनफरिद तजर्बा इसलिए था कि अमूमन उन्हें जो तर्जुमे किए थे वो पुरानी किताबों के थे, जहाँ पे मुसन्निफ़ को फौत हुए काफ़ी अरसा गुजर चुका था। तो हम्म। यहाँ पे मुसन्निफ़ हयात था और उसका एक नुक्ता नज़र था। लेकिन बहुत खुशगवार रहा, तो मैं तो बड़ा खुशकिस्मत रहा हूँ। अच्छा, फिर जेलम बुक कॉर्नर वाले जो हैं, जो दो भाई हैं, और पहले इनके वालिद ने ये दुकान शुरू की, और अब उनका कारोबार माशाल्लाह बहुत फैल गया है। और उसकी वजह यह है कि वो इंतहाई मोहब्बत और दिलफशानी से किताब छापते हैं, पूरी दिलचस्पी से। उनका नाम? तो मैं, जी, गगन शाहिद और अमर शाहिद दोनों भाइयों का नाम है। और एक जो है वो सारी मार्केटिंग और पब्लिसिटी की जिम्मेदारी लेते हैं, और एक किताबें डिज़ाइन करने की और उनकी प्रोडक्शन की। तो मुझे चूंकि ये मेरे लिए बहुत अहमियत रखती है बात कि किताब खूबसूरत भी हो, उसकी उसका ख़त अच्छा हो, उसका सरवर्क अच्छा हो, तो वो भी बहुत इस चीज़ का एहतमाम करते हैं। तो अब तो खैर हमारी बहुत दोस्ती है। और उन्होंने बहुत मेहनत से मेरी, अब देखें, स्नफिंग आउट द मून भी उन्होंने छापी, चांद को गुल उन्होंने छापी, और अब गरूब शहर उन्होंने छापी है। तो हर किताब का जो प्रोडक्शन का टाइम है, अमूमन यहाँ ये होता है कि पब्लिशर लिखने वाले के हाथ नहीं आता, फ़ोन ही नहीं उठाता। तो जी। यहाँ ये सूरत हाल है कि हमने घंटों गुजारे हैं इकट्ठे किताब की छोटी छोटी बात के ऊपर, आपस में मशवरा करते हुए, जिसकी वजह से किताबें जिस तरह से छपी हैं वो भी लोगों को बहुत पसंद आई। और मेरे लिए अहम था कि उर्दू की किताबें दोबारा से खूबसूरत छपें, क्योंकि किताब को खूबसूरत होना चाहिए, उसके एस्थेटिक्स होने चाहिए। और मैंने फिर अब ये जो नई किताब है गरूब शहर का वक्त, उसके अंदर भी आर्ट है, जी। और उसका जो उसके अंदर ख़ास कुछ इमेजेस यूज़ किए हैं। तो वो फिर मुझे बहुत मज़ा आया उनके साथ काम करने का। तो अभी तक मैं बड़ा खुशकिस्मत रहा हूँ कि जो मुझे मुतरजम और पब्लिशर मिले हैं। और उससे पहले कैम्ब्रिज, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस की मेरे साथ काउंटर पार्ट थे, वो भी इंतहाई प्रोफेशनल, और बहुत मज़ा आया उनके साथ काम करने का। वाकई ये किताब बहुत खूबसूरत खूबसूरत है, गुरूब शहर का वक्त।
और शायद आपके पब्लिशर्स जो रहे हैं जिनके साथ आपका एक्सपीरियंस रहा है, उन्होंने आप में ये बात रिकग्नाइज की है कि आपने कितना ये कमिटमेंट और पैशन है अपने काम का, कि वो भी कदर ज़्यादा इसीलिए करते हैं क्योंकि बहुत ही आपका जो ये एक्सपीरियंस रहा है वो बहुत ही एक मुख्तलिफ सा है। अ, जी जी। वो बस खुशकिस्मती मेरी है कि हमारी तबीयत मिलती है और हम सारों के लिए ये अहम था कि जो काम हम कर रहे हैं जी वो आला तरीन मेयार का हो और उसको फिर लोगों तक पहुंचाया जाए। किताब लिखने और छापने का फायदा कोई नहीं है अगर तक हम उसको कारी तक पहुंचाए ना। जी तो मार्केटिंग के लिहाज से भी और उसको प्रमोट करने के लिहाज से भी ये लोग बड़े नुमाया रहे हैं और किताब की प्रोडक्शन में भी। और फिर जाहिर है जो पेंगुइन और कैम्ब्रिज वाले केस में तो चूंकि वो काफ़ी सोफिस्टिकेटेड पब्लिशिंग एनवायरनमेंट है, वहाँ पे तो एडिटर की भी बहुत अहमियत होती है। वो करता तो आपको सिर्फ प्रपोज ही है, बाइंडिंग नहीं होती उसकी फीडबैक। लेकिन मैंने देखा है कि एक अच्छा एडिटर जो है वो काम को बहुत निखार देता है और इस लिहाज से राइटर की अपनी एडिटिंग भी बहुत अहम है। हमारे यहाँ कई लोगों का ये तासुर है, खासतौर पर उर्दू में लिखने वालों को, कि जो उन्होंने लिख दिया वो हरफ आखिर है। ऐसे नहीं है, और कलम तोड़ दिया है उन्होंने। हालांकि ऐसे नहीं है, जितना जितनी मेहनत मेरे ख्याल में किताब लिखने में लगती है उससे ज़्यादा मेहनत उसके अंदर नफासत लाने में, उसको निखारने पे लगती है, तभी जाके किताब बनती है। जी बिल्कुल। और एक जो चीज उसामा, मुझे से थोड़ी सी हैरत हो रही है कि अ, झेलम बुक कॉर्नर जो है वो झेलम में बैठे हुए हैं ऑब्वियसली। जी तो वो तो एक छोटी सी जगह है, छोटा शहर है ना। तो बिल्कुल। और जिस जमाने में मैं उसको जानती थी, अब उसको 50 साल हो गए, तो वो तो बहुत ही छोटी जगह थी। वहां से इतना अच्छा। और बताइए जरा झेलम बुक कॉर्नर का, वहां की जी दुकान का जरा बिल्कुल। इनकी कहानी बड़ी अच्छी है और इंस्पायरिंग है, और मैं अक्सर लोगों को बताता हूँ, और मेरे ख्याल में हमारे यहाँ जो पॉजिटिव स्टोरीज हैं वो बतानी चाहिए। तो इनके वालिद साहब, जिनका अफसोस की बात यह है कि चंद साल पहले इंतकाल हो गया, अभी उनकी इतनी उम्र नहीं थी, वो बहुत किताबों के आशिक आदमी थे। और उन्होंने पहले बहुत छोटी सतह पे काम शुरू किया, एक लाइब्रेरी बनाई, एक तरह की लेंडिंग लाइब्रेरी। लेकिन उनको बहुत शगफ था किताबों का, खुद सारा वक्त किताबें पढ़ते रहते थे, जितने लोग उनकी कहानियाँ बताते हैं। तो फिर उन्होंने वो जो वहाँ से ये इब्तदा की, और फिर ये दो बेटे जो थे उनकी भी उन्होंने ट्रेनिंग की, और इन्होंने अपनी पढ़ाई के बाद उनको ज्वाइन किया। तो आई थिंक दो चार चीज़ें इन्होंने की जो कि इनकी कामयाबी की वजह बनी बाकी पब्लिशर्स की बनिस्बत। एक तो इन्होंने टेक्नोलॉजी का बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया। दूसरा, ये कोविड के ज़माने में जब लोग किताबों की दुकानों पे नहीं जाते थे, तो इन्होंने ऑनलाइन सेलिंग का जो काम था ना उसको बिल्कुल अजबर हो गए उसमें। हम्म, एक तो ये कि फौरी तौर पे ऑर्डर प्रोसेस होता था, बहुत अच्छी पैकिंग होती थी। तीसरा, इन्होंने बहुत तवज्जो किताबों की शक्ल, उनकी प्रोडक्शन पे दी, और बहुत ज़्यादा मार्केटिंग के ऊपर भी, कि सेल्स मुसलसल लग रही हैं। इनको एहसास था कि कई लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, स्टूडेंट्स वगैरह। तो मार्केटिंग भी बड़े ऐसा तरीके से की, किताबें भी खूबसूरत छापी, ऑनलाइन भी किया। एक और इनकी खास बात यह है कि इनके अंदर वो एक खास ओल्ड वर्ल्ड हम्म, चार्म और एक ईथॉस है जो इनके वालिद से आया है, कि इनके जितने लोग जिनको ये छापते हैं, और अब इनके मुसन्निफिन की तादाद बढ़ रही है, उनके साथ इनका ताल्लुक एक प्योरली कारोबारी ताल्लुक नहीं है। हम्म, उनके साथ कोई एक उन्स है, जब वो इज्जत करते हैं तो दिल से करते हैं, मोहब्बत से करते हैं। तो फिर जो लोग इनके जिनको इन्होंने पब्लिश किया वो फिर इनके गर्विदा हो जाते हैं, वो जाहिर है फिर इलाके इनको का प्रमोट करते हैं। हाँ। तो अब इलाका। देखिए, वो आप सिर्फ वो कमर्शियल इंटरेस्ट की बात नहीं होती, जब आपको लगता है कि अगला आदमी आपकी कदर करता है, खासतौर पर राइटर्स को, तो आपको पता है हमारे जैसे माशरों में जी अमूमन को इतनी अच्छी डील नहीं मिलती। जी। तो उस लिहाज से इनका जो है ना तर्ज अमल भी बहुत ही अच्छा है। तो अब ये है कि उम्मीद ये है कि अब ये इंशाल्लाह लाहौर भी आ जाएंगे और इनकी यहाँ प्रेजेंस होगी, दफ्तर और इनकी दुकान, और उस पर काम हो रहा है। मुझे लेकिन इन्होंने दुकान के जी बारे में जी किसका? जरा उसको डिस्क्राइब कीजिए, जो झेलम में दुकान है उसको डिस्क्राइब करके बताइए। जेलम में जो इनकी दुकान है वो बुनियादी तौर पे पुराने शहर के अंदर, जो कि काफ़ी गुंजान आबाद सा इलाका है, जी उसमें इन्होंने काफ़ी बड़ा शोरूम बनाया हुआ है, जो कि एक बेसमेंट में है। उससे मुंसलिक बहुत से दफ्तर हैं इनके। लेकिन ये लोग इनका इतना चार्म है और इनकी इतनी मेहमान नवाजी है कि लोग यहाँ से जेलम जाते हैं। सो जो भी वो नई किताब छापते हैं, उसकी एक तकरीब वो वहाँ पे रखते हैं, उसको ऑनलाइन फेसबुक लाइव पे लेके आते हैं। फिर ये सारे पाकिस्तान में अदबी मेलों पे और दूसरी जगहों पे जाते हैं। तो इन्होंने ये एक काम एक लिहाज से दोबारा से असल नौ शुरू किया कि वहाँ पे ये राइटर्स को बुलाते हैं,
और उनको बड़ी इज्जत से उनसे पेश आते हैं, और वहाँ उनकी मुलाकात क़ारीन से होती है। तो जो बहुत से रीडर्स हैं जिनको हमेशा से इश्तियाक था कि भाई हमारी पसंदीदा किताबें कौन लिखता है, उनकी इस तरह से मुलाकात हो जाती है, और एक डायरेक्ट रिलेशनशिप बन जाता है रीडर और राइटर के दरमियान। हम्म। फिर एज आई सेड कि ऑनलाइन भी वो बहुत से प्रोग्राम और चीज़ें करते रहते हैं। तो वहाँ इनकी एक अच्छी बहुत वसी दुकान है जेहलम के बाजार में, बिल्कुल जेहलम के वस्त में। हम्म। और वहाँ पे इनकी तकरीबात भी होती हैं, पर जाहिर है जेहलम दूर है, प्रिंटर तो उनका यहाँ पे है। तो अगर वो यहाँ किसी बड़े शहर में आ जाएं तो उनको जाहिर है कि अपना स्केल अप करने में भी आसानी होगी, बिकॉज दे विल फाइंड मेनी मोर प्रूफ रीडर्स एंड डिजाइनर्स एंड आर्टिस्ट। इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी होंगी इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। हम्म। And if they open an outlet, so they are so hospitable and so gregarious that they can have a regular series of events here. Because all said and done, Lahore is the hub of culture in many ways. यूनिवर्सिटियां हैं, एक पूरी ट्रेडिशन है। तो वो भी इंशाल्लाह हो जाएगा। और मैं उनकी तरक्की के साथ साथ ये चाहता हूँ कि उनको देखते हुए बाकी जो हमारे पुराने पब्लिशर्स हैं और जो नए आने वाले पब्लिशर्स हैं उनके लिए एक बेंचमार्क सेट हो, और वो भी थोड़ा सा हम्म। बेदार हों और ज़रा हरकत में आए। चूँकि जितना बड़ा ये मुल्क है 22-24 करोड़ का, उस लिहाज से तो हमारी पब्लिशिंग इंडस्ट्री जो है वो बहुत पीछे है। हम्म। तो जब ये लोग कहते हैं कि किताब बिकती नहीं या इतनी मांग नहीं है, मैं इसको बिल्कुल नहीं मानता। मेरा अब अपना तजुर्बा है 2017 से, जब से मैं नई किताबों के मामले में आया और मैंने खुद समझा कि किस तरह से मार्केट करना चाहिए और रिटेल कैसे चलती है। मेरे ख्याल में जो ये हमें बताया जाता है उससे बहुत ज़्यादा मांग है किताबों की। अगर आप किताब को थोड़ा अफोर्डेबल बनाएं, उसको थोड़ा खूबसूरत बनाएं और उसकी थोड़ी मार्केटिंग करें, तो पढ़ने वाला अभी भी बहुत है और वो पढ़ेगा। और आपका एक क्रिटिकल मास अगर रीडर्स का आ जाए तो उससे फिर ये है कि पब्लिशिंग इंडस्ट्री और सस्टेनेबल हो जाएगी। अगर सस्टेनेबल होगी तो बहुत से राइटर्स को मुआवजा मिलेगा। सो यही मैं बात बार बार लोगों को कहता हूँ कि किताबें खरीदें, लोकल पब्लिशर से किताबें खरीदें। कई लोग जो अफोर्ड भी कर सकते हैं वो किताब खरीदने से कतराते हैं, और जो नहीं अफोर्ड कर सकता उसके लिए हमें सस्ती से सस्ती किताब फराहम करनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल यही बात है कि लोग इन कीमतों पे किताब को नहीं अफोर्ड कर सकते। जो लोग सचमुच में पढ़ते हैं, जो वाकई हमारे रीडर्स हैं, वो इन 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 कीमतों पे नहीं अफोर्ड कर सकते। लेकिन आपने कहा लाहौर जो है वो कल्चर का हब है, ये कहा ना आपने। तो क्यों बिल्कुल। आप चाहते हैं कि या ये कर रहे हैं कि झेलम बुक कॉर्नर जो है वो लाहौर में भी अपनी एक दुकान खोलें अपना। लेकिन क्यों नहीं झेलम बन सकता हब कल्चर का, उसका क्यों नहीं अरूज हो सकता? नहीं, होना चाहिए, बिल्कुल हो। ये दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। But the fact from a marketing standpoint is that if somebody is trying to scale up their business, obviously they'll have to move to a place where there are many more opportunities, both in terms of hiring possibilities, but also in terms of the distribution of their books, in terms of dissemination, हम्म। because it cost है ना अभी। बाकी जेलम is still very much a sort of military cantonment. एंड उसकी जो बाकी इकोनॉमी है वो भी नहीं है। ये और बात है, ये तो एक अलग पूरी बहस है कि बाकी शहरों को भी बढ़ना चाहिए। लेकिन अगर मैं वहाँ बैठा हूँ तो आई शुड बी मूविंग ऑल्सो, ब्रांचिंग आउट रादर टू कराची और टू लाहौर, यस। बिकॉज दैट्स वेयर द मेजॉरिटी ऑफ द रीडिंग पब्लिक इज। तो इस ये और बात है, ये और बात है कि बहुत सी हमारी रीडिंग पब्लिक जो है हमारे दरमियाने साइज के शहरों में है, जो बहुत अच्छी बात है, विच इज़ ऑल्सो वेरी हार्टनिंग। सो एनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हैज़ टू बी नुआंस टू केटर टू ऑल दीज पीपल। बहुत किताब अंदरूनी सिंध बिकती है, कोयटा में बिकती है। और जहाँ तक प्राइसेस का भी ताल्लुक है तो आप ये देखें ना कि ये मेरी जो किताब 2,500 की है, ये हम पहले दिन से स्टूडेंट्स को 1,250 की दे रहे हैं। ठीक है ना। तो अब ये है कि एक कम से कम प्राइस तो आपको करनी पड़ेगी, पेपर बैक भी करेंगे। आई थिंक इट्स अफोर्डेबिलिटी, बट इट्स ऑल्सो अ मैटर ऑफ creating a habit of buying books and putting a premium on that and making it cool again. So, though that percentage of people aside who can't afford it और जिनके लिए लाइब्रेरीज और सस्ते एडिशन ज़रूरी हैं, मेरा ख्याल में अभी भी किताब उतनी महंगी नहीं है जितना उसको बताया जाता है। मैंने तो इनकी किताबों को हमेशा देखा है कि वो 40 से 50% कंसेशन पे वक्तन फवक्तन दस्तयाब होती हैं। जी, मैंने तो देखा है कि लोग 500 रुपए की चाय और कॉफी पीने को तैयार हैं, लेकिन बिल्कुल। 500 रुपए बिल्कुल। की किताब खरीदने से बिल्कुल गुरेज करते हैं, इनकार कर। ऐसे ही ऐसे ही है। और ये तो जो मुतमव्वल लोग हैं, अमीर लोग हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अगर कोई किताब उन्हें अच्छी लगी है तो 10 कापियां लें।
आसानी से ले सकते हैं। बिल्कुल और देते। ऐसे लोग दें जो कि उसके शौकीन हैं और जिनके लिए शायद लेना मुश्किल हो। ये इससे बेहतरीन तोहफा क्या हो सकता है। बिल्कुल। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि बजाय इसके कि ईद पे ईदियां बांटे पैसों की, क्यों नहीं किताबें बांटते। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। मैं तो अब किसी जगह तकरीब पे जाता हूँ तो वो जो शील्डें और इस तरह की चीज़ें आपको पकड़ाते हैं जिनका कोई मसरफ नहीं है, जी। मैं उनसे कहता हूँ कि कोई किताब दे दें मुझे। बिल्कुल। आप और मैं इससे पहले जब गुफ्तगू कर रहे थे तो हम बात कर रहे थे कि आपको कितना शौक है जाके तकरीबों में लोगों से बातें करने में, और ख़ास तौर से स्टूडेंट्स के साथ बातें करने में, और एक तरह से उस ट्रेडिशन को बढ़ाने की आप कोशिश करते हैं कि लोग किताबें पढ़ें, किताबों के जी पे बातें करें। इसकी कितनी, और कि यही तरीका है एक क्या कहना चाहिए, एक दवा है ये, एक किस्म की बिल्कुल। दवा है, एक पूरे माशरे के लिए दवा है, एक तरीका है एक पूरे माशरे को आ, उसकी जो महसूस रिवाइवल है एक तरह से, या उसको या को जो है। बिल्कुल। समझने में। मुझे बताएं कि ट्रॉमा के लिए क्या उर्दू का लफ्ज इस्तेमाल करूं। अम, तो एक किताब कितनी बड़ी दवा है अपने आप को समझने के लिए, अपने जी जी माशरे बिल्कुल। के लिए। मेरी बहुत सी वजूहत हैं करने की। एक तो ये है कि मैं अपनी ज़ाती ज़िंदगी में महसूस करता हूँ कि जो थोड़ी बहुत तरक्की मैंने की अपनी ज़िंदगी में वो किताब की वजह से है। वो इस वजह से है कि मेरे घर में ये माहौल था कि निसाब के अलावा भी किताब पढ़ी जाए, उर्दू में भी पढ़ी जाए, अंग्रेज़ी में पढ़ी जाए। और ना सिर्फ ये कि उससे मुझे अपनी ज़िंदगी में फ़ायदा हुआ जो भी मैंने काम किया, बल्कि मुझे इतना लुत्फ़ मिला है किताबों से। और किताब मेरे लिए इतनी बड़ी दवा, आपने सही लफ्ज़ इस्तेमाल किया, और इतना बड़ा एक मेरे लिए एक तोहफा है ज़िंदगी में कि कभी भी कोई भी ज़िंदगी में दुश्वारी या मुश्किल आई है तो किताब के सहारे मैंने उसका मुकाबला किया है। दूसरी बात यह है कि इल्म तो आपका सब किताबों में ही है, और इल्म की बड़ी कदर व मंजिलत है। और किसी इल्म को अहमियत दिए बगैर कोई तहजीब, कोई मुआशरा आगे चल नहीं सकता। और मैं बार बार बच्चों को ये एग्जांपल देता हूँ जिनसे मैं बात करता हूँ कि दुनिया के मसरूफ़ तरीन और दुनिया के अमीर तरीन लोग जो हैं उनके पास वक्त है किताब पढ़ने का, वो पढ़ते हैं। तो हमें जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमें तो और वक्त निकालना चाहिए, और जो बहुत सी खराफात और इस तरह की चीज़ें हैं इनसे बच के किताब पढ़नी चाहिए। तो मैं ख़ास तौर पे वक्त निकाल के स्टूडेंट से इसलिए बात करने जाता हूँ कि जो बात हमारे टेलीविज़न चैनल्स पे और हमारे अखबारों में होनी चाहिए वो बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। एक लिहाज से अगर मैं 20 साल पहले भी देखूँ, उसके मुआवजना करूँ उसका, हम्म। हर किस्म का जो अहमकाना चीज़ें और ऐसी चीज़ें जिनकी इतनी वक़्त नहीं है वो तो बहुत हैं। और मैं तफरीह के खिलाफ नहीं हूँ, और मैं बेमानी तफरीह के खिलाफ भी नहीं हूँ, बट एक ख़ास हद तक। लेकिन आप देखें कोई टीवी पे प्रोग्राम किताबों पे चीज़ों पे नहीं आता। आपकी कितनी किताबें आप छापते हैं अपने खित्ते के मुल्कों के मुकाबले में भी। तुर्की को देख लें, श्रीलंका, इंडिया, मलेशिया, सबको देख लें। दूसरी बात यह है कि मुझे लगता है कि जब मैं यंगर ऑडियंसेस से जाके इंगेज करता हूँ, मैं कल सुबह भी गया था, परसों सुबह भी गया था, दो मुख्तलिफ जगहों पे हम्म। बुलाते हैं लोग मुझे, मेहरबानी करते हैं, मुझे अच्छा लगता है जाना। तो मुझे जो उनकी आंखों में चमक नजर आती है नौजवानों की, उससे मुझे एहसास होता है कि ये हमारी उम्मीद है। अभी इनमें आइडियलिज्म है, अभी ये बात सुनते हैं, और अगर कोई खुलूस से उनसे बात करे, दिलचस्प अंदाज से बात करे, तो अभी इनमें जो मेरी जनरेशन के या मेरे से बड़े लोग हैं, मासवाए उनके जो कि रोशन ख्याल हैं, उनसे तो कोई अब उम्मीद रखना जो है वो हमाकत है, चूंकि वो तो बिल्कुल उनको जंग लग चुका है। वो जंग भी, और एक वो पके हुए हैं, वो बिल्कुल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा, मेरी अपनी सस्टेनेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि मैं इन लोगों से जाके मिलता हूँ, क्योंकि इनसे मुझे एनर्जी मिलती है, राइट। सो अगर मैं उन लोगों से जाके मिलता हूँ जो मेरे तबके के आगे पीछे लोग हैं, बारिंग एक्सेप्शंस, जो कामयाब हैं, जो हर लिहाज से वो सबसे ज़्यादा नेगेटिव है, जिन्होंने सबसे ज़्यादा इस मुल्क से फ़ायदा उठाया है, जिनको इस मुल्क से फ़ायदा पहुंचा है, उनके पास सबसे मनफी बातें हैं। तो मैं क्यों उनके साथ वक्त ज़ाया करूँ? मैं उनकी बजाय उन लोगों से क्यों ना बात करूं जो अभी आगे बढ़ रहे हैं, जो कि शायद बहुत नए ख्यालात और अच्छी चीज़ें करने वाले हैं। उनको बताऊं कि क्या पढ़ना ज़रूरी है, कैसे पढ़ना है, किस तरह से एनालाइज करना है, क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है। सो मैं तो फ्रैंकली अपने आप को सस्टेन करने के लिए भी इन लोगों के पास जाता हूँ। और मुझे हमेशा ये लगा कि जब मैं कहीं गया हूँ और मैंने उनसे बड़े खुलूस से बात की है, तो उन्होंने उसको रिसीव किया है, उनमें ग्रैटिट्यूड है, उससे उनके अंदर मुझे लगा कि उनको कोई फ़ायदा हुआ। इट्स अ म्यूचुअली रीइंफोर्सिंग काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप। और कई वहाँ पे यंगर फैकल्टी भी आपको मिलती है
जो मुश्किल हालात के बावजूद बहुत अच्छा काम कर रही है। सो मेरे लिए वो लोग इंस्पिरेशन है। मैं तो पता नहीं उनके लिए कोई इंस्पिरेशन हूं या नहीं, वो सारे लोग मेरे लिए इंस्पिरेशन है। मेरे लिए भी उसामा, मुझे तो लगता है कि वो जो खुलूस और मोहब्बत मिलती है और जो इंटरेक्शन हो रहा होता है, तो उसकी, मैं तो बिल्कुल उससे इतनी ज्यादा खुद जैसे बैटरी सेल जो है वो रिचार्ज हो एब्सोल्युटली रिचार्ज हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। उसके, सो और वो बर्डन भी है, वो मेरे लिए एक बिल्कुल। बोझ भी है, बिकॉज मैं उसके नीचे धंस जाती हूँ कि इतनी मोहब्बत, इतना हाँ हाँ। खुलूस, इतनी कदर क्यों, कि परेशान हो जाती हूँ मैं इतना यहाँ। लोग जैसे कि उनमें इतना जो हमारी नौजवान नस्ल है उनमें इतना एक जज्बा है, वलवला है, एक ख्वाहिश है कि अगर कोई उनसे दो बातें अच्छी तरह से कर ले तो वो आपको कितनी, आपकी कितनी कदर करते हैं। बिल्कुल करते हैं। और मेरी इसीलिए कोशिश होती है कि मैं ज़्यादा पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में जाऊं, और मैं ऐसी जगहों पे जाऊं जहां पे अमूमन लोग नहीं जाते, जो दूर अफ्तादा भी हैं। और मैं आपको क्या बताऊं कि जब से मैंने ये कानून की चीज़ों के अलावा फिक्शन लिखनी शुरू की है, तो ऐसे ऐसे दूर दराज इलाकों से लोगों ने मुझसे रब्ता किया है, जो वहाँ पे बड़ा दिलचस्प काम कर रहे हैं, जिनको मेरी कोई किताब या कोई तहरीर उनके दिल को भा गई, और उनके पास बड़े अच्छे सवाल थे। और मुझे लगा कि ये जो सारी मुशक्क़त मैं करता हूँ लिखने की, वो उसके पैसे पूरे हो गए। क्योंकि अगर ये लोग मुझे पढ़ रहे हैं, जो भी मैं लिखता हूँ, जो भी उसके अंदर खामियां हैं, लेकिन उनको उसके अंदर कोई ख़ास अच्छी चीज़ लगी, इससे वो इंस्पायर हुए, तो और उनका मुझे रीच आउट करना, मुझे बताना कि किस तरह से उस काम से वो मुतासर हुए, या उनका अपना कोई प्रोजेक्ट डिस्कस करना, मैं हमेशा उसके लिए वक्त निकालता हूँ। लेकिन हमारे लोग बुनियादी तौर पे बड़े प्यारे लोग हैं, अगर आप उनसे खुलूस से बात करें, और ख़ास तौर पे ऐसे लोग जो कि अभी दुनिया के मसाइब को देख के और इसके हालात के थ्रू गुजर के वो कड़वे लोग नहीं बने, जो हमारे अभी सुच्चे लोग हैं, यंगर लोग हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत बीबे वो एक जो, लोग। हाँ बिल्कुल बीबे हैं लोग, ऐसी कोई बात नहीं है। सो उसी से फिर मैं भी पॉजिटिव रहता हूँ। जी, बिल्कुल, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ओसामा, अब बताएं हम क्या बात करें, इतनी बातें हमने कर ली, इतनी अच्छी बातें कर ली। आप कोई नई किताब लिख रहे हैं या अभी इसको ही, जो अब आपने जो उर्दू में लिखा है जी नॉवल, जी। उसको अंग्रेजी में लेके आएंगे, क्या होगा? और मैं दूसरा, उसका एक थोड़ा सा जी बताइए और बताइए। सवाल पूछ लूं एक साथ ही, जी कि जी कि, ओहो, दूसरा मेरा क्या सवाल था? एक तो क्या आप इसको इसको अंग्रेजी में लाएंगे, जी। और दूसरा ये सवाल कि हमने ज्यादातर गुफ्तगू तो आज उर्दू में की है, जी तो अब जी। क्या आपके पास वक्त होगा, आज नहीं तो कल, कि हम अंग्रेजी में भी एक पूरी कर लें, बिकॉज वो भी जरूरी है मेरा ख्याल है। वो भी कर लेंगे ज़रूर, मैं हाजिर हूँ, उसका हम वक्त का तयन कर लेंगे। मैं आपका जो सवाल है उसके जवाब में दो तीन चीज़ें कहना चाहूँगा। एक चीज़ जो मैंने इस किताब में गुरूब शहर का वक्त में करने की कोशिश की है, जिसका जिक्र नहीं हो पाया, वो ये था कि इसमें 10 दास्तानों से मैंने इक़्तबासात शामिल किए हैं। और उसकी वजह ये थी कि मेरे ख्याल में हर चीज़ जो है वो गुज़श्ता से पेवस्ता है, एवरीथिंग इज़ लिंक्ड टू द पास्ट, और हम बड़े ए हिस्टोरिकल तरीके से अब चीज़ों को देखते हैं। सो मैं, एक तो उर्दू अदब की जो खूबसूरती है, और वो जो मैंने दास्तानें चुनी हैं उनमें से कुछ ऐसी हैं जिन पे संस्कृत का असर है, कुछ पे अरबी का है, कुछ पे फारसी का है। और मैं ये दिखाना चाहता था कि ये जो ज़ुबान है हमारी, ये कितनी खूबसूरत है और कितनी डाइवर्स इसके सोर्सेज हैं। दूसरा ये है कि इन तमाम दास्तानों की खूबसूरती और उनको उजागर करने के अलावा मकसद ये था कि इन सब में कुछ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो आगे चलते रहते हैं। तो मैंने उसी के अंदर से कुछ आइडियाज़, कुछ कैरेक्टर्स लेके उनको फिर मॉडर्निटी में भी लेके आया हूँ। हम्म। दूसरी चीज़ मैं इस नावल के बारे में ये कहना चाहता था कि जहाँ तक इसमें ये क्लासिकी असलूब या स्टाइल है, मैंने कोशिश ये की है कि ये नावल मैं आजकल की ज़ुबान में लिखूं। मुझे बहुत खुशी इस चीज़ से हुई है कि मैं कई फेस्टिवल्स पे गया हूँ, तो बहुत से लोग जो मुझे मिले, जिन्होंने कहा कि हमने ये किताब पढ़ी है या पढ़ रहे हैं, वो 20 से 30 साल की उम्र के दरमियान हैं। वाह। और हम्म। उनको ये रिलेटेबल लगी। हम्म। उनको लगा कि ये एक 21वीं सदी का नावल है। उर्दू का असलूब इसमें है, उसका रोमान है, उसकी मौसीकी है, लेकिन इसमें आजकल के मसाइल, आजकल की ज़ुबान, आजकल के जो तासुरात, टेक्नोलॉजी, ये तमाम चीज़ें भी हैं। तीसरी, इस किताब में मैंने ये कोशिश की कि मैं कुछ ऐसी चीज़ों पे बातें करूं जो कि अमूमन आपको उर्दू नावल में नज़र नहीं आती। सो इसमें फिज़िक्स भी है, इसमें टाइम का कॉन्सेप्ट जो है उसके साथ भी मैंने ग्रैपल किया है,
चूंकि वो जो खालिद की प्री ऑक्यूपेशंस हैं और जो उसके सवाल हैं उस सिलसिले में इस किताब में मैंने कोशिश की है कि कई और किताबों का तज़किरा करूं, चाहे वो उर्दू की हों या फ्रांसीसी अदब से हों या लातीनी अमेरिका से हों या जापान से हों, बिकॉज आई लाइक टू राइट समथिंग विच टॉक्स अबाउट अदर बुक्स एंड सॉर्ट ऑफ मैं खुद अगर किसी किताब में किसी किताब का जिक्र आए तो मुझे उसमें हम्म। बहुत दिलचस्पी है। चौथी बात इसके बारे में एक ये है कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत एक तरह से एक्सपेरिमेंटल है, लेकिन मुझे खुशी ये हुई है कि बहुत कम लोगों के अलावा जिन्होंने बिल्कुल शुरू में कहा कि अच्छा इसकी कहानी जो है वो कहाँ है और ये वो, जो कि इसमें लीनियर एक स्ट्रक्चर उस तरह से नहीं है और फ्रेगमेंट्स में है। vast majority of readers, and these are not just critics or seasoned writers, but average student kind of readers did not have an issue with the fact that I'd experimented so much with the structure. हम्म। They actually liked it. They said, "Nahi, we can imagine why you're doing it," and it was more like a movie with various sort of scenes and snapshots. So I'm happy that my experimentation, both thematically in terms of structure, हम्म। and I really feel because I read fiction all the time कि हम उर्दू के अंदर भी innovations करें। वक्त के साथ साथ नावल का तस्वुर आगे चलेगा और मुझे जैसे लैटिन अमेरिकन लिटरेचर में स्ट्रक्चर और चीज़ें और एक्सपेरिमेंटेशन या और दुनिया के लिटरेचर में है, हम्म। वो मैंने कोशिश की है एंड इट हैज़ बीन मोर वेल रिसीव्ड देन आई इमेजिन्ड इट वुड बी, व्हिच इज़ आल्सो वेरी हार्टनिंग। हम्म। अब आपका जो सवाल था वो इसको उर्दू में लिखा क्यों मैंने, एक तो यही एहसास कि वो जो शनाख्त का सवाल है कि हम क्यों सिर्फ अंग्रेजी में लिखें, अपनी ज़ुबानों में क्यों ना लिखें, सारी दुनिया के राइटर्स अपनी ज़ुबान में लिखते हैं। दूसरी बात ये कि उर्दू एक बड़ी खूबसूरत ज़ुबान है और कुछ चीज़ों में मेरा ख्याल में अंग्रेज़ी से सुपीरियर है। जो रोमांस है और जो ह्यूमर है वो आपकी अपनी ज़ुबान में हमेशा ज़्यादा मौसर होती। तीसरी बात यह कि मैंने इसको अंग्रेज़ी में लिखना शुरू किया, लेकिन कुछ कैरेक्टर्स जो मैंने बनाए वो मुझे कैरिकेचरिश लगे, मज़ा नहीं आया मुझे, तो वो नुआंस जो था वो उर्दू में मिला और फिर जब लिखना शुरू किया तो वो चलता चला गया। इसमें मजीद अमजद का और उर्दू शायरी का भी बहुत जिक्र है। ये भी एक ऐसी चीज़ है जो मैं उर्दू नावल में ही कर सकता था, अंग्रेज़ी में नहीं। और मैंने मजीद अमजद को दोबारा डिस्कवर किया कि क्या उसकी कॉस्मिक विजन थी और क्या उसका मेटाफर है, और बेतहाशा और भी शायरों का इसमें हवाला है। और एक जो मेन किरदार तैयबा खाला का है जो हम्म। कि एक साइंटिस्ट हैं, उसके साथ साथ एक शायरा भी हैं। सो ये चीज़ें मैं उर्दू में ही कर सकता था, अंग्रेज़ी में इसलिए लिखना चाहता हूँ कि बहरहाल उसकी एक कहानी और उसमें एक जो भी एक लार्जर एक प्रोजेक्ट है वो उसकी एक रीडरशिप वाइडर भी है, बिकॉज वो सिर्फ लाहौर तक तो नहीं है और आप शोकेस भी तो करना चाहते हैं अपने माशरे, अपनी सिविलाइजेशन और अपने शहर को, यू वांट अ लार्जर ऑडियंस। लेकिन मैं तर्जुमा इसलिए नहीं करना चाहता कि तर्जुमा कुछ ना कुछ, बहुत से अच्छे तर्जुमे मैंने पढ़े हैं लेकिन रिजिड हो जाता है और अंग्रेजी का एक अपना ईडियम है। तो मैं चाहता ही हूँ कि कहानी तो मोरलेस यही रहेगी लेकिन उसमें शायद कुछ तब्दीलियां स्ट्रक्चरली और अदरवाइज आएंगी। मैं इसको री इन्विजन करके अब अंग्रेजी में लिखना चाहता हूँ एंड दैट्स द नेक्स्ट प्रोजेक्ट। लेकिन इसके दौरान अगर किसी और किताब का ख्याल आ जाता है या कोई और इंस्पिरेशन आ जाती है, दैट में टेक ओवर, बट दिस आई डू वांट टू कंप्लीट एट सम पॉइंट। मेरा ख्याल है जिस तरह से आप गुफ्तगू करते हैं, आप दो दो नॉवल साथ साथ भी लिख सकते हैं। मेरा कूंडा हो जाएगा कि मैं नहीं करूंगा, क्योंकि बाकी रोज जो फिक्रे रोजगार के लिए जो काम है वो भी हो रहे होंगे। लेकिन ये है कि आपको तो अच्छी तरह अंदाजा है बिकॉज यू आर सच अ सीजन्ड एंड वाइडली रेड ऑथर, हाउ अ बुक कंज्यूम्स यू, राइट? सो इट्स अ वेरी इमोशनली ड्रेनिंग एक्सपीरियंस एज वेल। तो इट लीव्स यू ड्रेन्ड, सो आई थिंक थोड़ी सी सेल्फ प्रिजर्वेशन का भी सोचना चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कि जब एक दफा किताब पकड़ लेती है आपको, जरा वक्त लगता है जब आप लिख रहे होते बिल्कुल। हैं कि उसमें आपको मजा आना शुरू हो। लेकिन अगर वो शुरू हो जाता है मामला किताब के साथ, वो मामला जब शुरू हो जाता है तो फिर सारी दुनिया जो है वो उसी में शामिल होती चली जाती है। ऐसे ही है, वही आप उसके अंदर बिल्कुल डूब जाते हैं। जी, पूरी कायनात उसमें आ जाती है। तो फिर इसी जगह उसामा, आज की हम जो हमारी जो गुफ्तगू है। है उसको खत्म करते हैं। खत्म करना बिल्कुल। सही लफ्ज है इधर। फिलहाल फिलहाल हम अगली गुफ्तगू के इंतजार में हाँ। आज आज की गुफ्तगू को ख़त्म करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इंशाल्लाह हम दोबारा गुफ्तगू नहीं करेंगे। आपने वक्त निकाला, इतने अच्छे सवाल पूछे और मुझे मौका मिला इन पे बात करने का, उसका बहुत मज़ा आया। लेकिन
हम अंग्रेजी में भी दोबारा गुफ्तगू कर सकते हैं। हम क्रिएटिव प्रोसेस इटसेल्फ पे मैं जानना चाहूँगा कि आपका तजुर्बा क्या है। तो बहुत कुछ अभी आपस में बात करने को है, इंशाल्लाह दोबारा करेंगे। बिल्कुल इन सब बातों पे बात करेंगे, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने वक्त निकाला, आप तो उल्टी बात नहीं, करती हैं। बहुत खुशी मुझे हुई। ये वक्त तो बहुत ही मज़े का कटा, पता भी नहीं चला। बिल्कुल नहीं पता चला, और आप, यही आपकी खूबी है कि जो भी आपके साथ बैठता है उसको यही लगता होगा कि भाई ये जो शख्स है, अगर ये बोले तो ये पूरा दिन बोल सकता है, और ये अपने को रिपीट भी नहीं करेगा। इसका इतनी वसी दिमाग है, वसी कहूंगी कि इतनी ज्यादा चीजें हैं इसके इसकी नॉलेज में, कि हम इसको बैठ के काफी देर तक सुन सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया उसामा। नहीं, आपका बहुत शुक्रिया ज़रा नवाजी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।